اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سارعوا الی الطاعات، ان کاموں کی طرف دوڑیے جن میں خدا کی اطاعت ہے۔ سارعوا الی الطاعات، ان کاموں کی طرف دوڑیے جن میں خدا کی اطاعت ہے۔ بحث ہماری موجز فی اصول فقہ میں آج یہ شروع ہو رہی ہے مقدمۃ الواجب۔ مقدمۃ الواجب، اس میں ہم نے اپنے عزیزوں کی خدمت میں پہلے مقدمہ کی تعریف کرنی ہے کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں، پھر یہ بیان کرنا ہے کہ کون سا مقدمہ محل بحث ہے اصولیوں کی نظر میں، اور مقدمے کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں جہاں تک ہم پہنچ پاتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلے جناب علی مقدمہ کی تعریف، مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ مقدمہ فرماتے ہیں ما یتوسل بها الی شیء آخر علی وجہ لولا لما امکن تعصیلہ۔ مقدمہ کی تعریف یہ فرما رہے ہیں کہ مقدمہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان دوسری چیز تک پہنچتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ اگر یہ مقدمہ نہ ہوتا تو وہ دوسری چیز بھی حاصل نہ ہوتی۔ مقدمہ کی تعریف کیا ہو گئی جان؟ مقدمہ وہ ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی دوسری چیز کا اشارہ ذیل مقدمہ ہے، جس کے ذریعے انسان جو ہے ذیل مقدمہ تک پہنچتا ہے، اس طرح کہ اگر یہ مقدمہ نہ ہوتا تو وہ دوسری چیز یعنی ذیل مقدمہ بھی حاصل نہ ہوتا۔ یہ ہے آقا جان مقدمہ کی تعریف۔ پھر یہ جو مقدمہ ہے کبھی مقدمہ منحصرہ ہے اور کبھی یہ مقدمہ غیر منحصرہ ہے۔ مقدمہ منحصرہ کا مطلب یہ ہے کہ تنہا یہی مقدمہ ہے جو ہمیں ذیل مقدمہ تک پہنچاتا ہے، اور کوئی ہمارے پاس راہ ہے ہی نہیں، یہی ایک ہی راہ ہے جو ہمیں اس ذیل مقدمے تک پہنچاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مقدمہ منحصرہ۔ اور مقدمہ غیر منحصرہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس ذیل مقدمے تک پہنچنے کا ایک راہ نہیں ہے، اس مقدمے کے ذریعے بھی پہنچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی راہ ہیں ہمارے پاس جن کے ذریعے سے ہم ذیل مقدمے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا مقدمہ غیر منحصرہ۔ اور پھر یہاں ایک بات آپ کے مد نظر ہے، یہ جو مقدمہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذیل مقدمے کا جو مقدمہ ہے عقلی طور پر واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو بحث اصول میں کی جا رہی ہے مقدمہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بحث شرعی طور پہ ہے۔ شرعی طور پر اگر ذیل مقدمہ واجب ہو تو اس کا مقدمہ بھی کیا شرعی طور پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ بحث ہم نے شرعی طور پر کرنی ہے، عقلی طور پر بحث نہیں ہے کہ اگر ایک واجب ہے تو اس کا جو مقدمہ ہے اس تک واجب تک پہنچانے کے لیے کیا وہ شرعی طور پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ عقلی طور پر واجب ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آقا جان مقدمے کی تقسیمات ہیں، ذرا آپ غور فرمائیں گے۔ مقدمے کی مختلف تقسیمیں کی جا رہی ہیں۔ ایک مقدمے کی تقسیم یہ ہے، مقدمہ ہوتا ہے داخلیہ اور خارجیہ۔ مقدمے کی ایک تقسیم کیا ہے، مقدمہ داخلیہ اور مقدمہ خارجیہ۔ مقدمہ داخلیہ کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ داخلیہ
मुरक्कब का जुज होता है, या हर वो चीज़ जिस पर मुरक्कब मौकूफ है उसको कहते हैं मुकद्दमे दाखिलिया। और इस मुकद्दमे दाखिलिया का वजूद मुस्तकिल नहीं होता है, वजूद मुरक्कब के अलावा इसका कोई अपना खारजी वजूद हो नहीं, ठीक है या नहीं, इसका कोई वजूद मुस्तकिल वजूद मुरक्कब से हटकर इसका नहीं होता है, ठीक है ना। सादा सी बात है आगा जान, मुकद्दमे दाखिलिया जैसे मिसाल के तौर पे हामद रकू है, ये नमाज के लिए क्या है आगा जान, मुकद्दमे दाखिलिया हैं। हर जुज होगा तो फिर अगला जुज अंजाम पाएगा, रकू पहले करेंगे तो फिर जाकर बंदा जो है ना सजदा करता है। नमाज के अंदर जितने भी अज्जा हैं हर जुज जो है वो उस नमाज के लिए क्या आगा जान, मुकद्दमे दाखिलिया है। मुकद्दमे दाखिलिया जो है मुरक्कब का जुज होता है, ठीक है, या जिस पर मुरक्कब मौकूफ है। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, मसलन हामद है, रकू है, ये नमाज के लिए मुकद्दमे दाखिलिया होते हैं। अच्छा, एक होता है मुकद्दमे खारिजिया। मुकद्दमे खारिजिया वो है जिस पर क्या का जान, ज़िल मुकद्दमा का जो है वो मौकूफ है, लेकिन इस मुकद्दमे का वजूद मुस्तकिल होता है। उस जो वजूद शय है जो ज़िल मुकद्दमा है उससे हटकर इसका एक अपना वजूद मुस्तकिल होता है मुकद्दमे खारजिया का। जैसे वुज़ू है नमाज की निस्बत, तो वुज़ू मुकद्दमे खारजिया है नमाज के लिए, और इस वुज़ू का वजूद मुस्तकिल है, ठीक है। एक ये हो गई आगा जान, ठीक है। दोबारा अर्ज सुन ले मेरी, मुकद्दमा की एक तकसीम है, मुकद्दमा दाखिली होता है और मुकद्दमा खारजिया होता है। मुकद्दमा दाखिलिया क्या होता है कि भाईजान नमाज के अंदर हर जो है ना वो इस नमाज का मुकद्दमा दाखिलिया है, ठीक है। रकू है, सजूद है, तकबीर है, ठीक है, हम्द है, सूरा है, ये सारे इस नमाज के लिए मुकद्दमा दाखिलिया हैं। ये होगा तो फिर नमाज हासिल होगी। और इसका कोई वजूद मुस्तकिल नहीं होता, वही मुरक्कब का वजूद होता है, इस मुकद्दमे दाखिलिया का अपना कोई वजूद मुस्तकिल नहीं होता है। और दूसरा अर्ज कर चुका हूँ, मुकद्दमे खारजी होता है। मुकद्दमे खारजिया ऐसा मुकद्दमा है जिस पर ज़िल मुकद्दमा जो है वो मौकूफ़ है, लेकिन इस मुकद्दमे का वजूद मुस्तकिल होता है, ठीक है। जैसे वुज़ू नमाज की निस्बत है। अच्छा, एक तकसीम और है आगा जान, मुकद्दमे की एक तकसीम और है, ठीक है। ये हाकिम के लिहाज से है कि हुक्म करने वाली कौन सी चीज़ है, बेलिहाज हाकिम। मुकद्दमे की एक तकसीम है, मुकद्दमा होता है अकली, शरई, आदी। मुकद्दमे की दूसरी तकसीम आपको बता रहा हूँ, मुकद्दमे अकलिया, मुकद्दमे शरिया, मुकद्दमे आदिया। ये जो तकसीम है ये बेलिहाज हाकिम है। मुकद्दमे अकली क्या होता है, मुकद्दमे अकली वो होता है कि मुकद्दमे अकली ऐसा मुकद्दमा है जिस पर ज़िल मुकद्दमा जो है वो मौकूफ़ है अकलन। ज़िल मुकद्दमा जिस मुकद्दमे पर मौकूफ़ हो अकली तौर पर इसको मुकद्दमे अकली कहते हैं। जैसे हज मौकूफ़ है किस पर, कत्ते मसाफत पर, सफ़र तय करने पर। सफ़र बंदा तय करेगा तो हज को अंजाम देगा, ठीक है। ये मुकद्दमा अकलिया है। दूसरा जो है मुकद्दमा शरइया। मुकद्दमा शरिया क्या होता है जान, मुकद्दमा शरई वो है कि ज़िल मुकद्दमा जो है इस मुकद्दमे पर मौकूफ़ है शरअन। मुकद्दमा शरई ऐसा मुकद्दमा जिस पर ज़िल मुकद्दमा मौकूफ़ है, शरई तौर पर मौकूफ़ है। जैसे नमाज मौकूफ़ है तहारत पर, ये मुकद्दमा शरई हो गया। मुकद्दमा आदी क्या है, मुकद्दमा आदी है कि ज़िल मुकद्दमा जिस मुकद्दमे पर मौकूफ़ है लेकिन वो मुकद्दमा आदी है, आदतन है ऐसा। मुकद्दमा आदी क्या हुआ, ऐसा मुकद्दमा जिस पर ज़िल मुकद्दमा मौकूफ़ है आदतन। जैसे छत पर चढ़ना हो आगा जान तो सीढ़ी लगानी पड़ती है, आदतन ऐसे ही है ना, सीढ़ी के बगैर बंदा छत पर कैसे चढ़ेगा,
आदतन सीढ़ी लगाएगा, सीढ़ी के ऊपर पाँव रख कर जो है छत पर चढ़ेगा, तो ये है मुकदमे आदिया। तो ये मैंने अर्ज़ किया ना, ये बेलिहाज़ हाकिम है। अगर हुक्म करने वाला अक्ल हो, ठीक है ना, इस मुकदमे का हुक्म करने वाला अक्ल है तो मुकदमा अकली हो जाएगा। अगर शारे है हुक्म करने वाला तो मुकदमा शरी है। अगर आदत है आदि है, जैसे मसलन लोग आदतन इस तरह करते हैं तो वो मुकदमे आदि है। ठीक हो गई बात आगा जान, ये आपकी खिदमत में इसका आइए पहले तर्जमा आपकी खिदमत में कर लेता हूँ इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल्लाह। अल-फस्लुर राबिउ, चौथी फसल, मुकद्दिमतुल वाजिबे, तारीफ़ुल मुकद्दिमते, मुकद्दिमा की तारीफ़। मा युतवस्सलु बिहा इला शैइन आखर अला वजहिन लौलाहा लमा अमकना तहसीलहु। मुकदमा की तारीफ क्या हो रही है? मा युतवस्सलु बिहा इला शैइन आखर, मुकदमा वो है जिसके जरिए से एक दूसरी चीज तक पहुंचा जाए। दूसरी शय से मुराद क्या ले रहे हैं? ज़िल मुकदमा। अला वजहिन, इस तरह, लौलाहा लमा अमकना तहसीलो, इस तरह, लौलाहा, अगर ये मुकदमा ना होता, लमा अमकना तहसीलो हो यानी वो शय आखर ज़िल मुकदमा, तो ज़िल मुकदमा उस शय आखर को हासिल करना भी मुमकिन ना होता। मिन गैर फ़र्क़िन बैन कौनिल मुकद्दिमति मुनहसिरतन और गैर मुनहसिरतिन, फ़र्क नहीं है ये मुकदमा मुनहसिरा हो या मुनहसिर ना हो। मुनहसिर हो यानी तन्हा यही मुकदमा है जो ज़िल मुकदमे तक पहुंचाता है, यही एक ही मुकदमा है जो ज़िल मुकदमे तक पहुंचाता है। और गैर मुनहसिर है यानी इस मुकदमे के अलावा और भी चीज़ें हैं जो ज़िल मुकदमे तक हमें पहुंचा सकती हैं, ये हो जाएगा गैर मुनहसिरा। गायतुल अम्र अन्ना लौ कानत मुनहसिरतन लनहसर रफ़ुल इस्तिहालत बिहा, मुंतहा गायत अम्र ये है अन्नहा लौ कानत मुनहसिरतन, अगर ये मुकदमा मुनहसिर हुआ, लनहसर रफ़ुल इस्तिहालत बिहा, तो उस इस्तिहाला और ममनूयत को उठाना इसी मुकदमे पर मुनहसिर है। व इन कानत गैर मुनहसिरतिन लनहसर रफ़ुल इस्तिहालत फ़िल इतियान बिहा व बिगैरिहा, और अगर मुकदमा गैर मुनहसिरा है तो उस इस्तिहाला और ममनूयत को उठाना मुनहसिर है। फ़िल इतियान बिहा, इस मुकदमा को अंजाम देने पर, और बिगैरिहा, इस मुकदमा के गैर को अंजाम देने पर। वक़द वक़ल खिलाफ़ु फ़ी वुजूबे मुकद्दिमतिल वाजिब शरअन बाद इत्तिफ़ाक़िल उक़लाए अला वुजूबिहा अक़लन, इख्तलाफ वाक़ हुआ है फ़ी वुजूबिल मुकद्दिमतिल वाजिब शरअन, शरअन मुकदमा के वजूब में इख्तलाफ हुआ है। बाद इत्तिफ़ाक़िल उक़ला अला वुजूबिहा अक़लन, बाद इसके कि उक़ला इत्तिफ़ाक़ रखते हैं कि मुकद्दिमा वाजिब है अक़ली तौर पर। इस नुक्ते को खूब गौर करना, आखिर में भी यही साबित हमने करना है, ये मुकद्दमा वाजिब है या वाजिब नहीं है। ये इख्तलाफ किस में है? शरई होने में है कि मुकदमा शरई तौर पर वाजिब है या नहीं, अक़ली तौर पर बहस नहीं है। ठीक है। वक़द वक़ा अल खिलाफ़ु फ़ी वुजूब मुकद्दिमतिल वाजिब शरअन, ठीक, फ़ी वुजूब मुकद्दिमतिल वाजिब शरअन बाद इत्तिफ़ाक़िल उक़ला अला वुजूबिहा अक़लन, इख्तलाफ वाक़ हुआ है वुजूब मुकद्दमा वाजिब शरअन के बारे में बाद इसके कि इत्तिफ़ाक़ है उक़ला का कि मुकदमा अक़ली तौर पर वाजिब है। व क़ब्ल दख़ूल फ़ी सुल्बिल मौज़ूए नज़कुरु अक़सामल मुकद्दिमते, सुल्ब मौज़ू कहते हैं असल बहस को। असल बहस में दाखिल होने से पहले हम मुकदमा की अक़साम को ज़िक्र करते हैं। फ़नक़ूलो, बस हम कहते हैं इन्न लिल मुकद्दिमते तक़सीमातिन मुख्तलिफ़तन, मुकद्दमा की मुख्तलिफ़ तक़सीमात हैं। अल-अव्वलु तक़सीमु इला दाखिलियतिन व खारिजियतिन, दाखिलियतिन व खारिजियतिन, मुकद्दमा तक़सीम होता है दाखिली और खारजिया में। अल मुकद्दमतु दाखिलिया, मुकद्दमा दाखिली क्या है? वहिया जुज़उल मुरक्कबे, ये मुरक्कब की जुज़ है।
और कुल्लु मा यतवक्कफ़ु अलैहिल मुरक्कबो, या हर वो चीज़ जिस पर मुरक्कब मौकूफ है, वलैसा लहू वजूदुन मुस्तकिल्लुन खारिजुन अन वजूदिल मुरक्कबे, और इस मुकदमे का वजूद मुस्तकिल नहीं है वजूद मुरक्कब से खारिज। कसलात, जैसे नमाज है, फ़इन्ना कुल्ल जुज़्इन मिन्हा मुक़द्दिमतुन दाखिलियतुन, नमाज जो है इसका हर जुज़ जो है मुकदमे दाखिली है, बेएतिबार अन्नल मुरक्कब मुतवक्किफ़ुन फ़ी वजूदिही अला अज्ज़ाइही, बइन एतबार के मुरक्कब यानी वो नमाज मौकूफ़ है फ़ी वजूदिही, इसका वजूद अला अज्ज़ाइही अज्ज़ा पर। ठीक है ना। नमाज कब बनेगी? जब हम उसके रकू सजूद सारे अंजाम देंगे। सारे रकू सजूद मुकदमा है नमाज के लिए। फ़कुल्लु जुज़्इन फ़ी नफ़्सिही मुक़द्दिमतुन, ठीक है ना, ले वजूदिल मुरक्कब, हर जुज़ बज़ात खुद मुकदमा है वजूद मुरक्कब का। व इन्नमा सुम्मियत दाखिलियतन, इस मुकदमे को दाखिलिया का नाम दिया गया है, लिअन्नल जुज़अ दाखिलुन फ़ी क़िवामिल मुरक्कब, इसलिए कि जुज़ दाखिल है क़िवाम मुरक्कब में, वजूद मुरक्कब में। फ़लहम्दु अवर रुकू बिनिस्बत इलस्सलात मुक़द्दिमतुन दाखिलियतुन, पस हमद और रकू जो हैं नमाज की निस्बत मुक़द्दमे दाखिलिया हैं। अल मुक़द्दिमतुल खारजियतु, मुक़द्दमे खारजिया, वहिया कुल्लु मा यतवक्कफ़ु अलैहि शै, मुक़द्दमे खारजी वो है हर वो मा यतवक्कफ़ु अलैहि शै जिस पर चीज़ मौकूफ़ है, चीज़ यानी जिस पर ज़िल मुक़द्दमा मौकूफ़ है। वलहू वजूदुन मुस्तकिल्लुन खारिजुन अन वजूद शै, और वलहू इस मुकदमे का वजूद मुस्तकिल है, खारिज है उस वजूद शै यानी ज़िल मुकदमा के वजूद से ये खारिज है। कल वुज़ू बिनिस्बत इलस्सलात, जैसे वुज़ू नमाज की निस्बत। दूसरी आगा जान जो तकसीम है मुकदमे की वो ये है, अस्सानी तक़सीमुहा इला अक़लियतिन व शरीयतिन व आदियतिन, मुकदमे की तकसीम अक़लिया और शरिया और आदिया में ये बता चुका हूँ, बेलिहाज़े हाकिम है। अल मुक़द्दिमतुल अक़लियतु मा यकूनु तवक्कुफ़ु ज़िल मुक़द्दिमति अलैहि अक़लन, मुकदमे अक़ली वो है कि ज़िल मुक़द्दिमा जो है इस मुकदमे पर मौकूफ़ है अक़लन, का तवक्कुफ़िल हज अला क़त्तिल मसाफ़त, जैसे हज मौकूफ़ है क़त्ते मसाफ़त पर, क़त्ते मसाफ़त यानी सफ़र तय करने पर। अल मुक़द्दिमतु शरिया मा यकूनु तवक्कुफ़ु ज़िल मुक़द्दिमतु अलैहि शरअन, मुकदमे शरी वो है जिस पर ज़िल मुकदमा मौकूफ़ है शरअन शरी तौर पर, का तवक्कुफ़ सलात अला तारत, जैसे नमाज मौकूफ़ है तारत पर। अल मुक़द्दिमतुल आदिया मा यकूनु तवक्कुफ़ु ज़िल मुक़द्दिमतु अलैहि आदतन, मुकदमे आदिया वो है जिस पर ज़िल मुकदमा मौकूफ़ है आदतन, का तवक्कुफ़ सऊद इला सत्ह अला नस्ब सुलम, जैसे छत के ऊपर चढ़ना मौकूफ़ है सीढ़ी के लगाने पर, चाहे वो लकड़ी की हो या लोहे की हो, बिलाखिर एक सीढ़ी लगाने पर मौकूफ़ है। का तवक्कुफ़ सऊद इला सत्ह अला नस्ब सुलम, जैसे छत के ऊपर चढ़ना जो है सीढ़ी के लगाने पर मौकूफ़ है। ठीक हो गई बात अगर जान। इसके बाद एक और मुकदमे की तकसीम है, लेकिन मैं इसको आपके लिए फिर थोड़ा अलग बयान कर लूँगा ताकि आपके लिए और मेरे लिए मुश्किल ना हो अगर जान, आसानी के साथ हम आगे बढ़ पाएँ, दर्स तुलानी ना होने पाए। मुवफ़्फ़क़ रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।